Chapter 2, My Early Days with the Chimpanzees. Jane Goodall spent more than 55 years observing wild chimpanzees in Gombe Stream National Park in Tanzania. Read an excerpt from her autobiographical writing. July 16, 1960 was a day I shall remember all my life. It was when I first set foot on the shingle and sand beach of Chimpanzee Land, that is Gombe National Park. I was 26 years old. Mum and I were greeted by the two African game scouts who were responsible for protecting the 30 square miles of the park. They helped us find a place where we could put up our old ex-army tent. We chose a lovely spot under some trees near the small, fast-flowing Kekombe stream. Every morning I got up when I heard the alarm clock at 5:30 a.m. I ate a couple of slices of bread and had a cup of coffee from the flask. Then I set off, climbing to where I thought the chimps might be. Most often I went to the peak. I discovered that from this high place I had a splendid view in all directions. I could see chimps moving in the trees and I could hear if they called. At first I watched from afar through my binoculars and never tried to get close. I knew that if I did, the chimps would run away silently. Gradually, I began to learn about the chimps, home and how they lived. I discovered that most of the time the chimps wandered about in small groups of 6 or less, not in a big troop like the baboons. Often a little group was made up of a mother with her children or 2 or 3 adult males by themselves. Sometimes many grounds joined together, especially when there was delicious ripe fruit on one big tree. When the chimps got together like that, they were very excited, made a lot of noise and were easy to find. Eventually, I realized that the chimps I watched from the peak were all part from one group, a community. There were about 50 chimps belonging to this community. From the peak, I noted which trees the chimps were feeding in and then, when they had gone, I scrambled down and collected some of the leaves, flowers or fruits so they could be identified later. I found that the chimps eat mostly fruits but also a good many kinds of leaves, blossoms, seeds and stems. Later, I would discover that they also eat a variety of insects and sometimes hunt and kill prey animals. Yes, so Jane Goodall spent more than 55 years observing wild chimpanzees in Gombe Stream National Park in Tanzania. So this is an excerpt from her autobiographical writing. अब बच्चों autobiographical writing क्या होता है पहले वो समझो आप. देखो ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग होती है एक बायोग्राफी होती है जो किसी इंसान की आत्मकथा होती है किसी इंसान की जीवनी होती है ना. अब ये ऑटोबायोग्राफी है मीन्स जिस व्यक्ति की खुद की ये कहानी है उसमें से लिया हुआ एक एक्सर्प्ट है, एक अंश है ना. एक अंश मीन्स कुछ पार्ट कुछ हिस्सा लाइफ का बताया है. तो दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग. और उनकी खुद की आत्मकथा लिखी है. आत्मकथा यानी खुद की कथा लिखी है, खुद के जीवन की बारे में लिखा है जो भी हुआ है और उसमें से ये एक एक्सर्प्ट जो है इस चैप्टर में बताया है. तो ये किसकी कहानी है? जेन गुडॉल. उन्होंने क्या किया? उन्होंने 55 इयर्स जो है वाइल्ड चिंपांजीज को ऑब्जर्व किया है ना. 55 इयर्स तक उन्होंने वाइल्ड चिंपांजीज को ऑब्जर्व किया है. कहाँ पे? गॉम्बे स्ट्रीम में नेशनल पार्क. गॉम्बे स्ट्रीम नेशनल पार्क, इट इज ए नेशनल पार्क गॉम्बे स्ट्रीम इन तंजानिया. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस? तंजानिया. प्लेस का नाम क्या है? तंजानिया. नेशनल पार्क का नाम क्या है? गॉम्बे स्ट्रीम. ठीक है. कितने साल तक ऑब्जर्व किया? 55 इयर्स. And this is not a story, this is an excerpt from an autobiographical writing of Jane Goodall. क्या नाम है उनका? Jane Goodall. Okay. So what happened? 16th July 1960. अब ये खुद लिख रहे हैं अपनी कहानी तो बताते जा रहे हैं कैसा है उन्होंने. तो 16 जुलाई 1960 was a day I shall remember all my life. यानी 16 जुलाई एक ऐसा डे था 1960 जो Jane Goodall will remember all her life.
It was when I first set foot on the shingle and sand beach of Chimpanzee Land, that is बॉम्बे नेशनल पार्क। तो क्यों याद रहेगा भैया पूरी लाइफ ये दिन, क्योंकि यही एक दिन था जिस दिन इट वॉज द डे व्हेन दिस जेन गुडॉल सेट हर फुट यानी उन्होंने ये जो चिंपांजी लैंड था, बॉम्बे नेशनल पार्क का जो चिंपांजी लैंड है, पूरा नेशनल पार्क में जो चिंपांजी एरिया है वहाँ पे इन्होंने पहली बार कदम रखा था, है ना। यहाँ पे लिखा शिंगल एंड सैंड बीच ऑफ, तो शिंगल हियर मीन्स जैसे मीन्स एक्चुअली शिंगल मीन्स डिजीज, इट एक्चुअली शिंगल मीनिंग इज अ डिजीज, इट इज अ मीनिंग ऑफ अ डिजीज ऑफ नर्व्स की डिजीज को बोलते हैं जिसमें दाद वगैरह हो जाते हैं, वो शिंगल होता है। बट हियर शिंगल एंड सैंड बीच लैंड लिखा है, तो शिंगल एंड सैंड बीच लैंड मीन्स अ वेरी wrinkling and sand beach land of chimpanzee. I was 26 years old. अब 16th July 1960 को this Jane Goodall was how many years old? She was 26 years old. Mum and I were greeted by the two African Game Scouts. Mum is the mother, है ना, mother of this Jane Goodall, and this Jane Goodall were welcomed by two African Game Scouts. है ना। सो दिस तंजानिया इट इज अ प्लेस ऑफ साउथ अफ्रीका और वहाँ पे दो गेम स्काउट्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्काउट्स? स्काउट का मीनिंग होता है, गेम स्काउट्स का मीनिंग पीपल हु प्रोटेक्ट एनिमल्स इन अ सेंचुरी और अ नेशनल पार्क। ऐसे लोग जो नेशनल पार्क या सेंचुरी में जो है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, उनके कीपर होते हैं, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे गेम स्काउट्स। तो दो अफ्रीकन गेम स्काउट्स ने जो है दे ग्रीटेड दिस जेन गुडॉल एंड हर मदर who were responsible for protecting the 30 square miles of the park। अब ये गेम स्काउट्स का वर्क क्या था बॉम्बे नेशनल पार्क में? they were responsible to protect the 30 square miles, 30 मील स्क्वायर मील्स का जो पार्क है, एरिया है, उसको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दो गेम अफ्रीकन दिस टू अफ्रीकन गेम स्काउट्स के पास थी। They helped us find a place where we could put up our old ex army tent, और उन्होंने उनकी हेल्प करी ये जानने में कि कहाँ पे वो अपना आर्मी टेंट जो है, एक्स आर्मी टेंट लिखा है, तो एक्स आर्मी टेंट मीन्स पुराना वाला, है ना, आर्मी टेंट जो है उसको लगाने के लिए प्लेस फाइंड आउट करी। देन वी चोज अ लवली स्पॉट अंडर सम ट्रीज नियर द स्मॉल फास्ट फ्लोइंग कोकोम्बे स्ट्रीम, और फिर उन्होंने आर्मी टेंट लगाने के लिए कौन सी प्लेस चूज करी है? Near the under the small tree, some trees near the small fast flowing Kokombe stream। अब you know the meaning of stream, है ना, channel of river, ठीक है। अब कोकोम्बे इज द नेम ऑफ दैट स्ट्रीम। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रीम? कोकोम्बे। उसके पास में उन्होंने अपना आर्मी टेंट अंडर सम ट्रीज लगा दिया। अब क्या होता है आगे? एवरी मॉर्निंग आई गॉट अप व्हेन आई हर्ड द अलार्म क्लॉक एट 5:30 AM। एवरी मॉर्निंग शी यूज्ड टू वेक अप एट 5:30 AM। सुबह सुबह 5:30 बजे वो उठ जाती। आई एट अ कपल ऑफ स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, है ना, कपल ऑफ स्लाइसेस ऑफ ब्रेड मीन्स कपल मीन्स टू, तो दो ब्रेड जो है वो खाती, कॉफी लेती फ्रॉम द फ्लास्क, एंड देन आई सेट ऑफ क्लाइंबिंग टू वेयर आई थॉट द चिम्स might be। चिम्स मीन्स चिंपांजीज, तो उसके शॉर्ट में वो चिम्स बोल रही हैं। तो अब वो ऐसी जगह पे जाकर बैठ जाती जहाँ से उनको चिंपांजीज देखने को मिले। मोस्ट ऑफन आई वेंट टू द पीक। पीक मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन, है ना, तो जो ऊंची जगह थी वहाँ पे जाकर वो ऑफनली जो है ये दिस जेन गुडॉल यूज्ड टू गो एंड सिट, ताकि ऊपर से जो है सब दूर के चिंपांजीज उसे प्रॉपरली दिखे। आई कुड सी चिम्स मूविंग इन द ट्रीज एंड आई कुड हियर इफ दे कॉल्ड। तो चिम्स उनको घूमते हुए भी दिखते थे और आवाज लगाते थे, तो वो उन्हें सुन भी पाती थी। At first I watched from afar। afar means बहुत दूर से, afar means बहुत दूर से। तो at first I watched from afar यानी मैं पहले तो काफी दूर से बैठकर देखती थी। बिकॉज क्यों देखती थी? बिकॉज दे वुड रन अवे साइलेंटली। हो सकता है कि वो भाग जाए, होता है ना ऐसे एनिमल्स या बर्ड्स के पास हम अचानक जाते हैं तो वो वहां से भाग जाते हैं, है ना। To see from our binoculars। What is binoculars? An instruments from which we can see from a long distance। काफी लंबी दूरी से भी हम कोई चीज, जगह को या चीज को क्लियरली देख सकते हैं। ऐसे एक इक्विपमेंट को हम बाइनोकुलर कहते हैं, ठीक है। एंड नेवर ट्राइड टू गेट क्लोज। व्हाई? बिकॉज दे वुड रन अवे साइलेंटली। ग्रेजुअली आई बिगेन टू लर्न अबाउट द चिम्स होम एंड हाउ दे लिव। फिर धीरे धीरे ये जो जेन गुडॉल है थ्रू ऑब्जर्विंग, उनको ऑब्जर्व करके इन्होंने पता लगाया कि वो कैसा होम में रहते हैं, मीन्स उनका कैसा घर होता है, कैसे रहते हैं, हाउ दे लिव्ड, है ना, उनकी लाइफस्टाइल क्या है। I discovered that most of the time the chimps wandered about in small groups of 6 or less।
अधिकतर चिंपांजीज जो होते थे वो 6 या लेस, मतलब 6 या 6 से कम के नंबर ऑफ चिंपांजीज के ग्रुप में रहते थे, है ना, नॉट इन बिग ट्रूप लाइक बेबून्स। और बेबून्स जैसे बड़े ट्रूप में या बड़े ग्रुप्स में नहीं रहते थे, या जिसमें ज्यादा मेंबर्स हो ऐसे ग्रुप में नहीं रहते थे। व्हाट इज बेबून्स नाउ? बेबून्स भी एक मंकी है, वेराइटी ऑफ मंकी है, लार्ज ग्रुप ड्वेलिंग मंकीज। बड़ा ग्रुप होता है बबून्स का, बहुत सारे मंकीज होते हैं जो इधर उधर जाते हैं, विद अ लॉन्ग डॉग लाइक स्नाउट एंड लार्ज टीथ। उनके डॉग लाइक स्नाउट होता है, डॉग जैसा स्नाउट होता है, और लार्ज टीथ होते हैं, उन्हें बबून्स कहते हैं। वो लार्ज ग्रुप में रहते हैं, लेकिन ये चिंपांजी 6 और लेस के ग्रुप में रहते हैं। Often little group was made up of a mother with her children or 2 or 3 adult males by themselves. Sometimes many groups joined together. अधिकतर तो ये ग्रुप जो है मदर और चिल्ड्रन या सिर्फ मेल्स का ग्रुप होता था, जिसमें 6 या 6 से कम लोग रहते थे, कम चिंपांजीज होते थे। बट समटाइम्स जो है ग्रुप टुगेदर हो जाता था जब देयर वाज अ टेस्टी राइप फ्रूट ऑन अ ट्री, कोई अच्छी ट्री पे कोई बहुत अच्छे फ्रूट्स आते थे, तो बहुत सारे कम्युनिटी के जो चिंपांजीज है वो ट्री पे आके साथ में बैठकर खाते थे। दे यूज्ड टू मेक नॉइज, है ना, over there and sit together. So sometimes many groups joined together, especially when there was a delicious ripe fruit on one big tree. When the chimps got together like that, they were very excited, made a lot of noise and were easy to find. Eventually I realized that the chimps I watched from the peak were all part of a one group or community. फिर धीरे धीरे eventually means at the end, जब फाइनली जो है ये इसने ऑब्जर्व करा जैन गुडॉल ने, एंड शी डिस्कवर्ड, शी केम टू फाइंड आउट कि दीज जो भी ये चिंपांजीज देख रही हैं ये सब एक ही कम्युनिटी के हैं, एक ही ग्रुप के चिंपांजीज है जिन्हें ये ऑब्जर्व कर रही हैं। There were about 50 chimps belonging to this community. About 50 chimpanzees जो थे वो एक ही community को belong करते थे। From the peak, I noted which trees of chimps were feeding in, and then when they had gone. फिर peak से यानी ऊंचाई से, from the peak, I noted which trees the chimps were feeding in, and then फिर धीरे धीरे she used to discover कि क्या खाते हैं, what they are eating। तो उन्होंने देखा कि कुछ trees जो है वहीं पर जाके चिंपांजीज जो है they used to eat. I scrambled. What is the meaning of scrambled? Moved in a hurry to or from a particular place or position. I scrambled down, यानी वो एकदम नीचे की तरफ जो है भागी देखने के लिए कि what they are eating, and collected some of the leaves, flowers और fruits so that they could be identified later. फिर उन्होंने देखा कि अधिकतर यही ट्रीज पर आते हैं, तो वहाँ से लीव्स, वहाँ के फ्लावर्स और वहाँ के जो फ्रूट्स हैं उन्हें कलेक्ट करा। शी कलेक्टेड इट एंड शी टुक इट विथ हर सो दैट शी कुड आइडेंटिफाई इट लेटर कि ये कौन सा पेड़ है, कौन सा फ्रूट है, कौन सा फ्लावर, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए शी कलेक्टेड ऑल दोज थिंग्स। I found that the chimps eat mostly fruits but also a good many kind of leaves, blossoms, seeds and stems. और इतना स्टडी करने के बाद, डेली ऑब्जर्व करने के बाद शी आइडेंटिफाइड कि कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रीज की लीव्स, स्टेम्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स जो हैं या ब्लॉसम्स जो हैं, these chimpanzees used to eat. Sometimes they used to eat insects also and sometimes they used to hunt animals also, है ना। तो फिर लेटर आई वुड डिस्कवर्ड, कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि दे ऑल्सो ईट अ वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स एंड समटाइम्स हंट एंड किल प्रे एनिमल्स।